بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ پاکستان سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ بلوچستان میں بلوچ علیحدگی پسندوں نے ایک ٹرین پر حملہ کرتے ہوئے 120 مسافروں کو ہوسٹیج بنا دیا ہے۔ صورتحال بہت نازک ہے۔ اس کے علاوہ جدہ میں امریکہ اور یوکرین کے عہدیداروں کے درمیان بات چیت ہوئی۔ ان خبروں کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں۔ ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پودیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. گولڈن ٹریولز ہندوستان کا سب سے بھروسے مند، قابل اور بہترین خدمات کا ریکارڈ رکھنے والے ٹریولز کے ساتھ بنائیے اپنے مقدس سفر کو آسان۔ منسٹری آف مائنورٹی افیئرز، حکومت ہند اور منسٹری آف حج عمرہ سے منظور شدہ پچھلے 33 سالوں سے حاجیوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ مکہ میں 5 اسٹار اور مدینے میں 4 اسٹار ہوٹل میں ہے قیام۔ زون 1 جمرات سے صرف 90 میٹرز، VIP معلم A اور C سروس موجود ہے۔ بیسک پیکیج 7,20,000 شفٹنگ لی میریڈین ہوٹل، 32 دن معلم C۔ گولڈن پیکیج 9,30,000 روپے، شفٹنگ VVIP معلم A۔ پلیٹینم پیکیج 10,75,000 نان شفٹنگ VVIP معلم A۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروس، 3 وقت حیدرآبادی بہترین ذائقہ دار کھانے، AC بسوں کے ذریعے مدینہ اور مکہ کی زیارتیں۔ گولڈن ٹریولز کا سفر منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ پاکستان میں ٹرین پر بلوچ ملیٹنٹس کا حملہ، 120 مسافروں کو ہوسٹیج بنا لیا گیا، 6 فوجی ڈھیر۔ بلوچ لبریشن آرمی نے ذمہ داری قبول کی، کہا فوجی آپریشن کیا تو تمام ہوسٹیجز کو مار دیں گے۔ جدہ میں امریکہ یوکرین بات چیت، جنگ بندی سمجھوتا اور منرل ڈیل پر غور، مارکو روبیو نے کہا جنگ ختم ہونے کے آثار ہیں۔ ٹرمپ کے نمائندے رشیا کا دورہ کریں گے، ماسکو نے کہا امید ہے واشنگٹن جدہ بات چیت کے نتیجوں سے واقف کرائے گا۔ عالمی غیر یقینی کے بیچ خلیج عمان میں رشیا چائنا ایران کی جنگی مشقیں شروع، کئی بڑے جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، کئی جگہ دھاوے، درجنوں گرفتار۔ غازہ جنگ بندی سمجھوتے کے دوسرے مرحلے پر قطر میں بات چیت، امریکی نمائندے وٹکاف نے کہا ڈیل کے لیے ڈیڈ لائن طے کرنا چاہیے۔ فلپائن کے سابق صدر روڈریگو ڈوٹریٹ منیلا ایئرپورٹ پر گرفتار، عالمی عدالت ICC کی ڈرامائی کارروائی۔ وزیر اعظم مودی کا موریشس میں شاندار استقبال، قومی دن کی تقریب میں حصہ لیں گے، 20 پروجیکٹس کا افتتاح کریں گے۔
हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में अलहदगी पसंद बलोच मिलिटेंट्स ने एक ट्रेन पर हमला करते हुए 120 से ज़्यादा मुसाफिरों को होस्टेज बना लिया। इस कार्रवाई के दौरान कम से कम 6 पाकिस्तानी सिपाहियों को हलाक करने का दावा किया गया। इस वाक़े के बारे में और तफसीलात का इंतज़ार है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बोलान इलाके में जाफराबाद एक्सप्रेस को हाईजैक करने की जिम्मेदारी कबूल की। पाकिस्तानी फ़ौज सूरत हाल से निमटने के मंसूबे बना रही है, लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी ने वार्निंग दी है कि अगर उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन किया गया तो तमाम होस्टेजेस को मार दिया जाएगा। बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक बयान में कहा कि उसके फाइटर्स ने मंसूबाबंद तरीके से ये ऑपरेशन किया है। ग्रुप ने कहा कि उसकी मजीद ब्रिगेड और फतेह स्क्वाड ने ये कार्रवाइयाँ की। बलोच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि 6 सिपाहियों को हलाक किया गया और सैकड़ों मुसाफिर हिरासत में हैं। ये वाक़या रमज़ान के रोज़े के दरमियान पेश आया है। पाकिस्तानी अहदेदारों ने इसे दहशतगर्द कार्रवाई करार दिया है। ये ट्रेन जाफराबाद एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर जा रही थी, जिस पर पहले फायरिंग की गई। पाकिस्तानी मीडिया में शुरुआती खबरों के हवाले से कहा गया कि ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हुआ, बाज़ मुसाफिर भी जख्मी हुए। रेलवे अहदेदारों ने बताया कि ट्रेन में 450 मुसाफिर सवार थे। बलूच लिबरेशन आर्मी जैसी तंजीमें सरकारी फ़ौजों से लड़ रही हैं और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने का मुतालबा कर रही हैं। पाकिस्तानी अहदेदारों का कहना है कि बलूच लिबरेशन आर्मी को बाहर के मुल्कों की मदद हासिल है। ये ताज़ा वाक़या सिब्बी नाम के इलाके में पेश आया। हमले के बाद सिब्बी के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। खबरों में कहा गया कि एक बागी ग्रुप ने ट्रेन पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और सैकड़ों मुसाफिरों को होस्टेज बनाया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू करेगी तो इन होस्टेजेस को एक एक करके मार दिया जाएगा। बलोच लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स ने रेलवे ट्रैक को पहले धमाके से उड़ाया और फिर ट्रेन को रुकने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद वो ट्रेन में सवार हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस मकाम पर पहुंच गई हैं। सूरत हाल बहुत नाजुक है। बलूचिस्तान की हुकूमत ने कई एमरजेंसी कदम उठाए हैं। बलूचिस्तान में कई दहाकों से अलहदगी पसंदी की तहरीक जारी है। बलूचिस्तान सूबे में चाइनीज़ इंजीनियर्स पर भी कई हमले हुए हैं। बलूचिस्तान रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पाकिस्तान की जुमला ज़मीन का 44% हिस्सा है, लेकिन उसकी आबादी सबसे कम है। इस इलाके में दुनिया के अहम डीप सी पोर्ट में से एक गवादर पोर्ट भी है और बलूचिस्तान अपने कई मादनी वसाइल के लिए भी जाना जाता है और तिजारती नुक्ते नज़र से वो काफ़ी अहम समझा जाता है। बात करते हैं यूक्रेन मसले की। अमेरिका और यूक्रेन के अहदेदारों के बीच यूक्रेन जंग रोकने के बारे में सऊदी अरब के जद्दा शहर में बातचीत हुई। समझा जा रहा है कि इस बातचीत में जंग रोकने के अलावा मिनरल डील के बारे में भी बातचीत हुई। इस मौके पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बातचीत के नतीजे में जंग ख़त्म होगी। बातचीत की तफसीलात का इंतज़ार है। अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि उन्हें जंग ख़त्म होने के आसार नज़र आ रहे हैं। समझा जा रहा है कि इस सिलसिले में एक तजवीज़ पर बात हुई। इस तजवीज़ में रशिया के साथ समंदरी और हवाई सीज़ फायर के बारे में गौर किया गया। दूसरी तरफ रशिया ने आरिज़ी जंगबंदी की तजवीज़ को रद्द कर दिया और कहा कि वक्त ज़ाया किया जा रहा है और यूक्रेन की फ़ौज की तबाही को टाला जा रहा है। अमेरिका और यूक्रेन के अहदेदारों की बातचीत से पहले यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। सऊदी अरब ने उम्मीद ज़ाहिर की कि यूक्रेन बहरान को हल करने की कोशिशें कामयाब होंगी। आलमी कानून और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक मसले को हल किया जाएगा। इस दौरान यूक्रेन की हुकूमत ने बातचीत की मेज़बानी के लिए रियाद की कोशिशों की तारीफ़ की। यूक्रेन ने सऊदी अरब की तरफ से यूक्रेन को इंसानी मदद पहुँचाने पर भी शुक्रिया अदा किया। बयान में सऊदी अरब और यूक्रेन ने अपने मौशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का भी वादा किया। इस दौरान यूक्रेन के अहदेदार ने कहा कि कीव अमन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बहुत अच्छी मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं आलमी सूरत हाल पर MBS के समझदार नुक्ते नज़र की तारीफ़ करता हूँ और यूक्रेन की मदद के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। यूक्रेन के मुस्तकबिल के बारे में उनके एतमाद को जानकर बहुत अच्छा लगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दोनों मुल्कों ने कई अहम मसाइल पर बातचीत की। जिस वक्त यूक्रेन के अहदेदार अमरीकी अहदेदारों के साथ बातचीत कर रहे थे, ज़ेलेंस्की जद्दा में मौजूद थे। एक ऐसे वक्त जब सऊदी अरब में यूक्रेन और अमरीकी अहदेदारों के दरमियान बातचीत हुई है, यूक्रेन की जंग में तेज़ी आई है। यूक्रेन ने मॉस्को पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया है। मॉस्को के अलावा दूसरे इलाकों पर भी हमले का दावा किया गया। इस हमले में 2 लोग हलाक हुए। मॉस्को के मेयर ने बताया कि 73 ड्रोन्स को मार गिराया गया। मॉस्को के 4 एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया।
जहां अमेरिका और यूक्रेन के अहदेदारों के दरमियान सऊदी अरब के जद्दा शहर में मीटिंग हुई, वहीं यूरोपीय मुल्कों की भी एक मीटिंग पेरिस में हुई, जिसमें यूरोप के मुस्तकबिल और मफादात की हिफाजत के बारे में बातचीत की गई। जब से ट्रंप दूसरी बार सदर बने हैं, अमेरिका और यूरोप के दरमियान यूक्रेन और दूसरे मामलात पर ताल्लुकात खराब हुए हैं। इस दौरान ऐसी खबर है कि अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे विटकॉफ इस हफ्ते रशिया का दौरा करते हुए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। क्रेमलिन ने इस रिपोर्ट पर कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन क्रेमलिन के तर्जुमान डिमिट्री पेस्कोव ने कहा कि रशिया को उम्मीद है कि अमेरिका सऊदी अरब में यूक्रेन के अहदेदारों के साथ होने वाली बातचीत के नतीजों से रशिया को वाकिफ कराएगा। पेस्कोव ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। पिछले महीने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन जंग और अमेरिका रशिया ताल्लुकात के बारे में बातचीत की थी। रशिया और चाइना के समंदरी जहाज बड़ी जंगी मशकों के लिए ईरान के समंदरों में दाखिल हो गए हैं। ये मशकें एक ऐसे वक्त शुरू हो रही हैं जब आलमी सियासत की सूरत हाल बहुत पेचीदा है। इन मशकों को सिक्योरिटी बिल्ड 2025 का नाम दिया गया है। कई दूसरे मुल्क जैसे आज़रबाईजान, इराक, कजाकिस्तान, ओमान, पाकिस्तान, कतर, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और UAE के नुमाइंदे इन मशकों में मुबस्सिर की हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं। ये मशकें मंगल को शुरू हुई। जिस मकाम पर जंगी मशकें शुरू हुई वो चाबहार के बिल्कुल करीब है। इसके जरिए एक पैगाम देने की कोशिश की गई। ईरान, चाइना और रशिया के बड़े जहाज इन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। ये इलाके खलीज ओमान में हैं। इन मशकों में 3 मुल्कों ने अपनी फौजी ताकत का मुजाहरा किया। ये 2019 के बाद से तीनों मुल्कों की 5वीं बड़ी मशकें हैं। ये मशकें तीनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात का एक सबूत है। हालिया अरसे में ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव पैदा हुआ था। वाशिंगटन ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम्स के हवाले से ज़्यादा दबाव डालना चाहता है और मौशी पाबंदियों में इजाफा कर रहा है। जारी इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को बात फ़लस्तीन की। मगरबी किनारे के जनीन में इसराइली फ़ौज ने एक फ़लस्तीनी नौजवान और एक बुजुर्ग फ़लस्तीनी खातून को शहीद कर दिया और एक को ज़ख्मी कर दिया। रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने बताया कि एक चेक पॉइंट के करीब 60 साल ज़ईफ़ खातून को गोली मारी गई। इससे पहले एक नौजवान इस्माइल अमजद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया और उसकी मैयत को भी हिरासत में ले लिया गया। पिछले कई महीनों से जनीन और मगरबी किनारे के दूसरे मकामात पर इसराइली फ़ौज की ऐसी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस दौरान मगरबी किनारे के अलग अलग मकामात पर धावे करते हुए दर्जनों फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। पिछले 24 घंटों में 3 फ़लस्तीनियों को शहीद करने की खबर है। गाज़ा जंगबंदी समझौते के दूसरे मरहले के बारे में कतर में बातचीत जारी है। इस मौके पर मिडल ईस्ट से मुताल्लिक़ अमेरिका के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि होस्टेजेस की रिहाई और जंगबंदी समझौते के अगले मरहले के लिए एक डेडलाइन तय करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। इसके बाद इसराइल और हमास के साथ बातचीत के लिए वो दोहा रवाना हो गए। अमेरिका पहली मरतबा हमास से डायरेक्ट बातचीत कर रहा है। विटकॉफ ने कहा कि हमास के पास गाज़ा छोड़ने और हथियार तर्क करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कतर और जॉर्डन ने कहा कि इसराइल गाज़ा को भूखा मारने की कोशिश कर रहा है। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब गाज़ा के लिए बिजली सप्लाई करने की लाइन भी काट दी गई, जिससे पीने के पानी की सहूलतें भी मुतासर हो रही हैं। सऊदी अरब में भी गाज़ा की बिजली काटने की मजम्मत की। सऊदी वजारत ख़ारजा ने कहा कि ये फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा देने के बराबर है। कतर की वजारत ख़ारजा ने कहा कि ये आलमी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है। जॉर्डन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ये फ़लस्तीनियों को भूखा मारने की पॉलिसी का हिस्सा है। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि बिजली की सप्लाई रोकने के फैसले के संगीन नतीजे निकलेंगे। बरतानिया ने भी कहा कि उसे इसराइल के इस कदम पर गहरी तशवीश है। हमास ने कहा है कि इसराइल अब भी गाज़ा और इजिप्ट के दरमियान सरहदी इलाकों में तैनात है। हालांकि इसराइल ने कहा है कि वो जंगबंदी समझौते के मुताबिक फिलाडेल्फी कॉरिडोर से बाहर निकल जाएगा। एक ड्रामाई कदम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने फिलिपाइन के साबिक सदर रॉड्रिगो डोटरेट को मनीला एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। उन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो हांगकांग से वापस हो रहे थे। आलमी अदालत ICC 2018 से डोटरेट के खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात कर रही है। उन पर ड्रग नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान हज़ारों लोगों को हलाक करने और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम है। साबिक सदर को इल्ज़ामात की वजह से ओहदे से हटना पड़ा था। उनके वकील ने बताया कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है। सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी पर तरह तरह के तबसरे किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर मॉरिशस पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वो मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीब में हिस्सा लेंगे। मॉरिशस पहुंचने के बाद मोदी ने वहां के साबिक सदर अनिरुद्ध जगन्नाथ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिवसागर राम गुलाम की यादगारों पर फूल चढ़ाए। सोशल मीडिया पर दोनों लीडर्स ने कहा कि वो अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। बाद में वज़ीर-ए-आज़म ने मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म नवीन चंद्र के साथ पौधा लगाया। उन्होंने इस मौके पर माहौलियात की हिफाजत की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर
वज़ीर आज़म ने मॉरिशस के सदर और खातून अव्वल को OIC कार्ड हवाले किया। मोदी ने पोर्ट लुई में होने वाली एक तकरीब में मॉरिशस के सदर को महाकुंभ जल का तोहफा पेश किया। मोदी का मॉरिशस पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। खुद वहाँ के वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने मॉरिशस में इंडिया की मदद से चलने वाले 20 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करने का ऐलान किया है। आलमी सियासत में गैर यकीनी सूरत हाल का असर शेयर मार्केट्स पर पड़ रहा है। इनमें इंडिया की मार्केट भी शामिल है। मंगल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट आई। सेंसेक्स सुबह की ट्रेडिंग में 331 पॉइंट लुढ़क गया, लेकिन बाद में उसकी हालत में कुछ सुधार आया। इसी तरह निफ्टी में भी 200 पॉइंट्स की गिरावट आई, लेकिन बाद में उसकी हालत कुछ बेहतर हुई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादर घाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. गोल्डन ट्रैवल्स हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद, काबिल और बेहतरीन खिदमात का रिकॉर्ड रखने वाले ट्रैवल्स के साथ बनाइए अपने मुकद्दस सफर को आसान। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हुकूमत हिंद और मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा से मंजूर शुदा पिछले 33 सालों से हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं। मक्के में 5 स्टार और मदीने में 4 स्टार होटल में है क़याम। जोन 1 जमरात से सिर्फ 90 मीटर्स VVIP मौलिम A और C सर्विस मौजूद है। बेसिक पैकेज 7,20,000 शिफ्टिंग ली मेरिडियन होटल, 32 दिन मौलिम C। गोल्डन पैकेज 9,30,000 रुपए शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। प्लैटिनम पैकेज 10,75,000 नॉन शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। मिना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विस, 3 वक्त हैदराबादी बेहतरीन जायकेदार खाने, AC बसों के जरिए मदीना और मक्का की ज़ियारतें। गोल्डन ट्रैवल्स का सफर मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। पाकिस्तान में ट्रेन पर बलोच मिलिटेंट्स का हमला, 120 मुसाफिरों को होस्टेज बना लिया गया, 6 फौजी ढेर। बलोच लिबरेशन आर्मी ने जिम्मेदारी कबूल की, कहा फौजी ऑपरेशन किया तो तमाम होस्टेजेस को मार देंगे। जद्दा में अमेरिका यूक्रेन बातचीत, जंगबंदी समझौता और मिनरल डील पर गौर। मार्को रूबियो ने कहा जंग खत्म होने के आसार हैं। ट्रंप के नुमाइंदे रशिया का दौरा करेंगे, मॉस्को ने कहा उम्मीद है वॉशिंगटन जद्दा बातचीत के नतीजों से वाकिफ कराएगा। आलमी गैर यकीनी के बीच खलीज ओमान में रशिया, चाइना, ईरान की जंगी मशकें शुरू, कई बड़े जहाज हिस्सा ले रहे हैं। इस्राएली फौज ने मगरबी किनारे में 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, कई जगह धावे, दर्जनों गिरफ्तार। गाजा जंगबंदी समझौते के दूसरे मरहले पर कतर में बातचीत, अमरीकी नुमाइंदे विटकॉफ ने कहा डील के लिए डेडलाइन तय करना चाहिए।
فلپائن کے سابق صدر روڈریگو ڈوٹریٹ منیلا ایئرپورٹ پر گرفتار، عالمی عدالت ICC کی ڈرامائی کارروائی۔ وزیر اعظم مودی کا موریشس میں شاندار استقبال، قومی دن کی تقریب میں حصہ لیں گے، 20 پروجیکٹس کا افتتاح کریں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔